Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 4. Here, this is a book, and the name of your book is Joyful Mathematics. So, today let's start a new chapter. This is chapter number 12 of your book, and the name of the chapter is Geometry. So, let's start the chapter. Here an exercise is given. Let's do that first. You have to match the basic shape with the colored face on the solid shape. So यहाँ पे basic shapes दिए गए, इन्हें हमें इनके solid shape से match करना. A will match with this third number. Now here यहाँ पे एक triangle है, it will match with this. यहाँ पे एक स्क्वायर की बात हो रही है, सो इट विल मैच विद दिस. और यहाँ पे एक सर्कल की बात हो रही है, सो इट विल मैच विद दिस. वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद ज्योमेट्रिकल शेप्स अराउंड अस. ये सारे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए गए हैं, ये हम पहले से जानते हैं. ज्योमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इंक्लूड पॉइंट्स. ज्योमेट्री में पॉइंट्स आते हैं, लाइंस, एंगल्स, 2D शेप्स, 3D शेप्स. The knowledge of geometry may be helpful in our daily life. हमारे daily life में geometry is very helpful. Now let us first revise what we have learned in the previous class, and then we should proceed further. So पहले हम revise करेंगे, हमने जो भी पढ़ा था उसके बाद हम आगे जाएंगे. Geometrical concept. पहला होता है point. Point क्या है? एक dot है जो हम बनाते हैं एक sharp point means एक पेंसिल से. दिस इज अ पॉइंट एंड इट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ. ना तो उसकी कोई लंबाई होती ना ही कोई चौड़ाई होती है. इट शोज पोजीशन और एग्जैक्ट लोकेशन. ये पोजीशन बताता है या फिर एग्जैक्ट लोकेशन बताता है. पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इन द एडजॉइंट फिगर. यहाँ पे फिगर है, इसमें पॉइंट ए यू कैन सी. नेक्स्ट इज लाइन. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ये एक्सटेंड हम कर सकते हैं जितना भी चाहें. Here you can see the picture of a line. इसके दोनों तरफ एरो बन रहा है. इसका मतलब हम इसे कितना भी चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों ही डायरेक्शन में. Thus it has no fixed length and cannot be measured. इसे मेजर नहीं कर सकते. A line can be represented in two ways. We write it as line PQ or PQ, and या तो हम इसे line PQ लिखेंगे या फिर सिर्फ PQ लिखेंगे. By using a small letter of the English alphabet, which is L. या तो हम L लिख के भी इसे denote कर सकते हैं. One and only one line can be drawn through two fixed points. So, दो fixed point से सिर्फ एक ही line draw किया जा सकता है. Infinite lines can pass through a single point. और एक single point से infinite line ही draw की जा सकती है. Next is a line segment. A line segment has two endpoints. This is a picture of a line segment. यहाँ पे आप दो endpoints देख सकते हैं. Thus it has definite length. इसकी जो length होती है definite होती है और इसे हम measure भी कर सकते हैं. We write it as AB. ऊपर आप देख सकते हो line segment बना हुआ है, या फिर BA ऊपर line segment बना है. अब ray क्या होता है? Ray is a line which has initial point but has no end point. इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है बट इसका कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं होता. मींस एक साइड से क्लोज रहता है, दूसरे साइड से आप कितना भी चाहे इसे एक्सटेंड कर सकते हो. Thus it has no definite length. इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती और इसे भी हम मेजर नहीं कर सकते. रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी एंड उसके ऊपर एक रे बनाते हैं. नाउ मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करना चाहिए? Place a centimeter of the ruler along the line edge segment. So हमने यहाँ पे एक स्केल रखा है लाइन सेगमेंट के ऊपर. ए बी 0 से रखना है हमें. 0 को हमें ए पे रखना है और हमें देखना है कितना मेजरमेंट है. Mark the scale coincides with the point A and the line segment. B पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? 4. Means ये जो लाइन सेगमेंट है ये 4 सेंटीमीटर का है. Then read the mark on the scale coinciding the line point B. The reading of the length of the line segment, the length of AB is
4 centimeter. Now drawing a line segment. Line segment को कैसे draw कर सकते हैं? Draw line segment of length 5.6 centimeter. तो 5.6 सेंटीमीटर के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट ए लेंगे, वहां पे हम अपना स्केल का 0 सेंटीमीटर रखेंगे। अब वहां से हमें क्या देखना है, 5 के बाद आप देख सकते हो कि स्केल में 5 और 6 के बीच में एक और बिग लाइन होती है, वो होती है 5.5, वो 5.5 होता है। तो 5.5 में क्योंकि हमें 6 चाहिए तो 0.5 के आगे वाला एक नंबर लेंगे जो कि हो जाएगा 0.6। तो अब हमने 0.6 पे एक डॉट लगाया बी पे और अब जो है हमने ज्वाइन कर दिया ए और बी को। AB is the required line segment of length 5.6 centimeter। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज नंबर 12.1। Which of these represent a ray? इनमें से कौन सा एक रे है, कौन सा एक लाइन सेगमेंट है या एक लाइन? राइट विद द सिंबल। सिंबल्स को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है पर दूसरा नहीं है, तो ये क्या है, एक रे है। सिमिलरली यहाँ पे दोनों साइड हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक लाइन है। और यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स है, इसका मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट। I hope this is clear. Now let's move on to question number 2. Measure the length of the following line segment. ये दो लाइन सेगमेंट आपके बुक में बने गए हैं। आपको क्या करना है, सेम स्केल को यहाँ पे रखना है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट तक आपको देखना है कि ये कितने सेंटीमीटर के हैं। So this you have to do on your own. Similarly, you have to find the length of this line segment also and write it. Now question number 3 है, draw the line segment of the following line. So 7.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव अ स्केल, सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 7.5 तक जाएंगे। अब 5 तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे 6, 7, 8। तो यहाँ 8 तक हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। मीन्स हमें क्या करना है, हमें जो है ये लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक ड्रॉ करनी है विद स्केल। सिमिलरली 5.2 कह रहा है, तो 5 के बाद 2 पॉइंट तक जाना है। अब यहाँ पे कह रहा है 7.8 सेंटीमीटर, अगेन सेम टू बी डन। एंड 4.7 है, तो 4 के बाद 5 तक जाना है और 6, 7 मीन्स यहाँ तक हमें ड्रॉ करना है। सो दिस यू हैव टू डू विथ अ स्केल। Now let's move on to question number 4. How many rays do you find in the following figure? इस फिगर में आपको कितने रे दिखाई दे रहे हैं? So जब हमने P और R को देखा तो PR एक रे है और यहाँ पे TQ एक रे है, दो ही रे दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, How many line segments do you find in the figure? So यहाँ पे कौन कौन से लाइन सेगमेंट है? पहला है AB, फिर दूसरा है BC, फिर है CD और नेक्स्ट है DA। जैसे हम AD भी लिख सकते हैं। So these are the line segments. Similarly, find out the line segment of the remaining figures. Now let's learn about the angles. Angles क्या है? A figure formed by joining two rays. दो rays को join करने पे एक figure बनती है। At their end point is called an angle. एक रे और दो रे को मिला के एक एंगल बना, सो इसे ही हम एंगल कहते हैं जहां पे इनका एंड पॉइंट्स मीट करते हैं। The two rays which form an angle are called arms of the angle. सो ये है एक आर्म और ये है दूसरा आर्म एंगल का। The point where the two rays meet is called the vertex of the angle. और वो पॉइंट जहां पे ये दोनों रे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। नाउ नेमिंग ऑफ एन एंगल, एंगल को कैसे नेम करते हैं? एन एंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। एन एंगल इज नेम्ड इन टू वेज, दो तरीके से हम इसे नेम कर सकते हैं। क्या है, CBA या ABC, ये दो तरीके हैं इसे नेम करने के। इन एंगल ABC
BA and CB are the arms and the B is the vertex. B जो ये point है ये vertex कहलाएगा. Using a single capital letter at the vertex such as angle B, या तो हम इसे angle B कहें क्योंकि B पे एक एंगल बन रहा है, या फिर यूजिंग कैपिटल लेटर्स विद द वर्टेक्स ऑफ द मिडिल ABC या फिर CK. ये दो तरीके हैं इसे बोलने. नाउ व्हाट आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. एंगल का इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर मीन्स अंदर का पार्ट और एक्सटीरियर मीन्स बाहर का पार्ट. सो लुक एट दिस एंगल PQR. ये एक एंगल है, एंगल PQR. अब Q को हमने बीच में क्यों लिखा है? क्योंकि Q तो बीच में है इसीलिए. द शेडेड पोर्शन शो द इंटीरियर ऑफ द पार्ट. अब ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? इंटीरियर है. और आप देख रहे हो इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट A और पॉइंट B. अब C कहाँ पे है? C है एक्सटीरियर मीन्स एंगल के बाहर. So these are interior and the exterior of the angles. Now let's do this exercise 12.2. Name the following angles. ये जो है एक right angle क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है. Clear? And और इसका नेम है angle ABC. Similarly यहाँ पे जो दूसरा एंगल है इसका नाम है XYZ. एंगल XY and Z. So similarly you have to do the rest of the questions, children. Now name the arms and vertex of the given angle. So children, here when we look at the first question, the arms are AB and BC and the vertex is B here. Similarly in this question यहाँ पे Z, Y, Z and X, Y और vertex है Y. Now let's move on to question number 3. From the given figure, list the points which are in the exterior of angle ABC. So angle ABC के exterior में क्या है? Exterior means बाहर. पॉइंट Z और C, सॉरी P. पॉइंट Z एंड P. अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटीरियर में बताना है आपको. इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हैं? X and Y. So I hope children you have understood it. Now let's move on to the next question, next part, that is polygon. Polygon क्या होते हैं? A simple closed figure formed with the 3 or more straight lines. एक closed बंद figure जिसमें 3 से ज्यादा lines होते हैं और वो भी straight line होनी चाहिए. It is called a polygon. इसे ही हम एक polygon कहते हैं. Sides and vertex of a polygon. क्या होते हैं sides और vertex polygon के? A vertex means ये जो कोने हैं ये vertex हो जाते हैं और ये जो line है जो इसे जो है figure बना रहा है उसे हम side कहते हैं. So the line segment which form a polygon are called its side. वो line segment जो क्या बना रहा है? Polygon को बना रहा है उसे हम side कहते हैं. The point at which two adjacent sides of a polygon meet. वो point जहाँ पे दो adjacent sides मिलते हैं उसे ही हम vertex कहते हैं किसी भी polygon की. Now what are the types of polygons? The first one is a triangle. A polygon with 3 sides. Triangle के 3 sides होते हैं. Here you can see there are 3 types of polygons there are 3 types of triangles in front of you. AB, BC, CA are the 3 sides and A, B, C are the vertices. So AB पहला side है, BC दूसरा side है और CA is the third side. A, B और C क्या है? Vertex. Next is quadrilateral. A polygon with 4 sides. वो polygon जिसके 4 sides होते हैं वो उसे quadrilateral कहते हैं. इसमें जो sides हैं AB, then BC, then CD and DA. और इसके जो vertex है A, B, C और D. Quadri means 4. Quadri का मतलब होता है 4. Tri का मतलब होता है 3. इस बात का ध्यान देना. तो जब भी ट्रायंगल की बात होगी तो 3 साइड्स होनी चाहिए. Quadri means 4 साइड्स होनी चाहिए. Lateral means sides.
Here ABCD are its vertex. AB, BC, CD, DA, these are the four pair of adjacent sides with the common vertex. ABCD, BC, DA are the pair of opposite side. AB और CD एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऐसे BC और TA भी एक दूसरे के ऑपोजिट है. AC and BD are the two diagonals. आप जो दो बीच के लाइंस देख रहे हो वो दो डायगोनल्स हैं जो ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स को टच कर रहे हैं. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. दिस इज अ पिक्चर ऑफ रेक्टेंगल. इट इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल and in which opposite sides are equal. Now the next is a square. This is a picture of a square. This is also a quadrilateral because it has four sides and इसके जितने भी sides हैं सारे equal होते हैं. Now next is pentagon. A polygon with 5 sides is called pentagon. So pentagon means 5 sides. So ऐसा polygon जिसके 5 sides है उन्हें हम कहते हैं pentagon. So AB, BC, CD, DE and EE. So these are the sides. Now A, B, C, D and E. These are the vertex. तो कितने sides है? 5 sides है. कितने vertex है? 5 vertex. The next is hexagon. Hexagon क्या है? It is 6-sided figure. इसके 6 sides होते हैं. In the given figure, AB, then BC, then AB, then BC, then CD, then DE and EF and FA. These are the sides. और vertex क्या है? A, B, C, D, E, F. ये vertex. Total 6 vertex होते हैं क्योंकि इसके sides 6 होते हैं. Now let's do this exercise number 12.3. यहाँ पे आपको क्या करना है? Check the figure which are polygons and cross the others. तो हमें टिक करना है जो पॉलीगन है और क्रॉस करना है जो पॉलीगन नहीं है. तो क्या ये पॉलीगन है? नो. क्या ये पॉलीगन है? यस. नेक्स्ट बी. क्या ये पॉलीगन है? यस. एंड एफ. क्या ये पॉलीगन है? नो. Similarly children, you have to find the rest and you have to do it on your own. Now let's do the true and false. A polygon with 4 sides is called a pentagon. No, this is false. Every square is a rectangle. So जितने भी square होते हैं क्या वो rectangle हो सकते हैं? Yes. This is true. So similarly you have to do the rest. Now let's learn more about triangles. So look at the following figures: M and O, A, B, C, P, Q, R and X, Y, Z. So these all are triangles but they have special names. ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे triangles हैं लेकिन इनका एक अलग special name भी है. Triangles are classified on the basis of length and of their sides. उनके sides की length कैसी है उसके according इन्हें categorize किया गया है. The first is equilateral triangle. So ये जो equilateral triangle है उसके जितने भी sides हैं सारे equal होते हैं. The triangle with all sides are equal are called equilateral. Means ये 6 है तो दूसरा भी 6 होगा और तीसरा भी 6 होगा. Means AB, BC और CA तीनों ही equal होंगे. The next is isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होते हैं? ये वो triangle होते हैं in which 2 sides are equal. 2 side जो है equal होते हैं but अगला नहीं होता है. तो इसमें जो है 2 sides क्या होते हैं? equal होते हैं as you can see. Next is scalene triangle. Scalene triangle में क्या होता है? All 3 sides have different length. तीनों जो sides होते हैं उनके length अलग अलग होती है. एक 3 है, एक 6 है, एक 5 है. तो यहाँ पे PQ जो है PR के equal है तो ये isosceles है. बट यहाँ पे कुछ भी equal नहीं है तो ये है scalene triangle. Now kinds of triangle on the basis of angle. अब angle के basis पे triangle को हम कैसे categorize करते हैं? The triangle has been classified into 3 categories on the basis of their angles. Triangles को 3 categories में divide किए गए. पहला है right angle triangle.
So this is a right angle triangle क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है. A triangle whose angle is 90 degree is called right angle triangle, and the side opposite to the right angle triangle is hypotenuse. और जो side opposite होता है right angle triangle का वो hypotenuse कहते हैं. The angle, the triangle PRO is a right angle triangle. और इसमें P क्या है 90 degree and the sides are hypotenuse. Now the next type of angle is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle क्या होता है? ये वो triangle होता है जिसका one angle is more than 90 degree. इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, but less than 180 डिग्री. 180 डिग्री से कम होना चाहिए. क्लियर? So 90 से ज्यादा होना चाहिए but 180 से कम होना चाहिए. So here you can see the example. This is called an obtuse triangle. In the adjoining figure, XYZ is an obtuse angle triangle because angle Z is 140 and which is greater than 90 degree. अब जो next triangle है वो है acute angle triangle. Acute triangle में क्या होता है? All the three angles are less than 90 degree. जो जितने भी angles होते हैं वो 90 degree से कम होते हैं. 70, 50 and 60. अब आप देख सकते हो M यहाँ पे क्या है 50 डिग्री, N क्या है 60 डिग्री और O क्या है 70 डिग्री जो कि 90 डिग्री से कम है. सो ये तीन ट्रायंगल्स पढ़े हमने. राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज angled and acute. Now here let's do this exercise 12.4. Triangle ABC is given in the adjoining figure. यहाँ पे एक फिगर है, इसमें ABC दिए गए हैं, इसमें इनके साइड्स बताने, वर्टिसेस बताने और एंगल्स बताने. तो साइड क्या है? जब हम साइड्स की बात करेंगे तो साइड हो जाएगा AB, BC और AC. जब हम वर्टिसेस की बात करेंगे तो आएगा A, B और C. जब हम एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स आएंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इन एंगल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BAC, एंगल ABC और एंगल ACB. ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स. इन ट्रायंगल्स को हमें क्लासिफाई करना है इनकी साइड्स के अकॉर्डिंग. सो हियर द फर्स्ट इज, जब हमने इनके साइड्स को देखा, सो हियर दिस फर्स्ट इज स्कैलेंट ट्रायंगल. जब हमने सेकंड को देखा, इनके ये दोनों sides equal है, so it is an isosceles triangle क्योंकि इसके दो sides equal है. इसका कोई भी side equal नहीं था इसलिए ये scalene था. अब D की अगर हम बात करें तो D हो गया हमारा equilateral. क्यों? इसके जितने भी sides हैं आप देखो तीनों sides equal है. Similarly, you have to do the rest of the questions given here. Now here you have to classify the following triangles with respect to their angles. In triangles को इनके angles के according हमें classify करना है. So this is right angled triangle. Again this is also right angled क्योंकि आप 90 डिग्री दिख रहा है. बट हम जब थर्ड में आते हैं तो कुछ भी 90 से ज्यादा नहीं दिख रहा है. सो दिस इज acute triangle.
This is obtuse angled triangle. क्यों? क्योंकि ये जो है 90 डिग्री से ज्यादा है पर 180 से कम है. Similarly, you have to find the angles of the wrist. Now the first question is draw a scalene triangle, an isosceles triangle and an equilateral triangle. So आपको ये तीनों triangles बनाने हैं. We have already done it, so you can easily draw it. Now fifth question is measure the sides of the given triangle and write their names. So इन triangles के sides को हमें measure करना है और इन triangles का नाम लिखना है. कौन से तरीके के यहाँ पे triangles हैं? I hope you have understood it and you can easily do it. So this you have to do on your own. Now let's learn what is circle. Look at the objects given below. All the alongside objects are circular in shape. यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं. सब कैसे हैं? शेप में सर्कुलर है. Place a bangle on the paper, trace along its boundary. आपको एक बैंगल रखना है, एक चूड़ी रखनी है और उसके कोनों को ट्रेस करना है. Till your pencil reaches the starting point. जब तक आपका पेंसिल हाथ तक ना पहुंच जाए स्टार्टिंग पॉइंट पर. The figure so obtained is called the circle और इसको ही हम सर्कल कहते हैं. So we can define a circle as a simple closed curve with only one curved edge and no vertex. So सर्कल का कर्व एज होता है, कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है. Now सर्कल में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए? The first is circumference. The length of the boundary of a circle is called circumference. ये जो बाहर की जो बाउंड्री है इसे ही हम circumference कहते हैं. जिसे सॉलिड्स के शेप में हम पेरीमीटर कहते हैं. Yes. जैसे अगर कोई ट्रायंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया, उसकी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर. तो सर्कल के केस में हम इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं. नेक्स्ट इज सेंटर. सेंटर जो सर्कल का जो बीच का जो पार्ट होता है, जहाँ जो एकदम मिड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं. जहां से किसी भी तरफ अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो वो इक्वल होगा. A circle has infinite radii and all radii are equal. Next, थर्ड क्या है? रेडियस. अब जो है किसी भी सर्कल में अगर आपने मिड मींस जो बीच में जो पॉइंट है यहाँ से लेके सर्कमफरेंस मींस सर्कल के सर्कमफरेंस तक अगर आपने टच किया तो ये बन जाता है रेडियस. सेंटर से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं हम सर्कल के, उसे हम रेडियस कहते हैं. अब इस फिगर में आप देख सकते हो OA एक रेडियस है, OB रेडियस है, OC रेडियस है, OD रेडियस है. इनफाइनाइट रेडियस हम बना सकते हैं. नेक्स्ट इज डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनते हैं. मीन्स द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो लाइन जो सर्कल के बीच से गुजरती है उसे हम डायमीटर कहते हैं. In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O. यहाँ पे आप देख सकते हो दो छोटी लाइंस बन रही हैं जो बीच से पास नहीं हो रही. So these are not the diameters. ये लाइन जो AB लाइन है जो O से भी पास हो रही है वही डायमीटर है. Now next is chord. A line segment which has its end point on the circle is called the chord. वो लाइन सेगमेंट जो कहाँ पे, जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं उसे हम कॉर्ड कहते हैं. सो अभी आपने देखा था एक सर्कल था और उसमें यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची थी, तो उस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर. और सर्कल का जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है वो होता है डायामीटर. नेक्स्ट इज आर्क. एन आर्क of a circle is a part of the circumference of the circle. ये जो आर्क है सर्कल का, ये circumference का पार्ट होता है. अब आप देख सकते हो A से B तक एक लाइन जा रही है, ये क्या है? आर्क है. ये हमारे सर्कल का ही पार्ट है, एक circumference का पार्ट है.
नाउ ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कॉम्पस. अब कॉम्पस से कैसे हम एक सर्कल को बना सकते हैं? लेट्स सी. वी यूज अ कॉम्पस टू ड्रॉ अ सर्कल. नाउ ओपन द आर्म्स ऑफ द कॉम्पस स्लाइटली. आपको जो कॉम्पस के जो आर्म्स है उसे स्लाइटली खोलना है. वी एडजस्ट अ पेंसिल. पेंसिल डालनी है और कॉम्पस का जो वन एंड है वो सर्कल के बीच मीन्स पेपर के बीच में रखना है और जो पेंसिल का एंड है उसे यहाँ पे रखना है और फिर हमें लाइन को ड्रॉ करना है. मीन्स कॉम्पस का वन पार्ट यहाँ रहेगा और पेंसिल का पार्ट यहाँ रहेगा एंड वी कैन इजीली ड्रॉ अ सर्कल. हियर यू कैन सी ये कॉम्पस का ये पार्ट होना चाहिए एक पार्ट में और पेंसिल का दूसरा पार्ट होना चाहिए और उसको पूरी गोल हमें एक सर्कुलर वे में मूव करना है. सो जैसे हमने पेंसिल को सर्कुलर वे में मूव किया तो क्या होगा? ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज द वे वी कैन ड्रॉ द सर्कल. अब यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कल हमें बनाना है 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है. तो हमने स्केल पे कॉम्पस में पेंसिल लगाने के बाद स्केल पे कॉम्पस का ये पॉइंट हमने 0 पे रखा और पेंसिल का ये पॉइंट हमने 6 पे रखा. तो हमने 6 सेंटीमीटर को मेजर कर लिया. अब हमने पेपर पे अपने कॉम्पस को रखा और फिर पेंसिल को गोल घुमाया तो हमें 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल मिल गया. दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 12.5. Here you have to draw circle using 10 rupee coin and a bangle. So एक 10 rupees का कॉइन लेना है उससे एक सर्कल बनाना है और एक बैंगल लेना है उससे एक सर्कल बनाना है. Use a thread to find the circumference of each circle. एक थ्रेड लेना है. क्या करना है? एक पॉइंट पे रखना है. उसे धागे को लेना है एक पॉइंट पे रखना है और जो आपने सर्कल बनाई है उसके चारों तरफ उस धागे को लेके जाना. और हमें क्या करना है? दोनों का सरकमफ्रेंस, दोनों जो सर्कल हमने बनाए थे 10 रुपी कॉइन्स और एक बैंगल से, दोनों का सरकमफ्रेंस नापना है कि कितना सरकमफ्रेंस है स्केल से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड नेम द फॉलोइंग. फिगर को देखना है और इन चीजों को बताना है. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? O. रेडियाई ऑफ द सर्कल क्या है? आप देख सकते हो OX, OP, OQ. अब क्या कह रहा है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल. सर्कल में कॉर्ड है विच इज LM. डायमीटर क्या है? PQ. और एक कॉर्ड और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि PQ है. PQ इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूज अ कॉम्पस एंड ड्रॉ द सर्कल. सो आपको स्केल पे 3 सेंटीमीटर 0 से 3 तक लेना है 3 सेंटीमीटर और उसे मेजर करने के बाद आपको सर्कल बनाना है. सिमिलरली 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल. सर्कल बनाने के बाद जो मिडिल से एंड पॉइंट तक आपको लिखना है 5 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर. सो दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन. Now let's learn the relation between radii and diameter of a circle. So क्या relation होता है इस radius और diameter के बीच में? Look at the center with circle with center O. यहाँ पे आपको एक circle दिख रहा है जिसमें O क्या है? Center है. AB is a diameter. A से लेके B तक जो है diameter है. OA and OB are the radii of the circle. अब यहाँ पे OB और OA क्या है? Radii is circle. सो AB को अगर हम किसी फॉर्मूला में लिखें तो AB क्या है? AO प्लस OB. दोनों को प्लस करने पे क्या निकला? रेडियाई है दोनों. सो यहाँ पे जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो 2 बार हमने रेडियस को प्लस किया है. तो हियर द डायमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2R. डायमीटर इज इक्वल टू 2R. R means radius. Now the question is find the diameter of the circle with radius 8 cm. So 8 centimeter जो है सर्कल का रेडियस है. आपको डायमीटर निकालना है. So let's put the formula that is 2R which is equal to 2 multiply 8 which is 16. So 16 is the diameter of the circle. Now let's look at this next example. Find the radius of the circle with diameter 14 centimeter. अब 14 सेंटीमीटर का
डायमीटर है, इसमें आपको रेडियस को फाइंड आउट करना है. सो अभी हमने पढ़ा था कि डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r. अब हमने r को फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को यहाँ d के नीचे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे ले जाएंगे, तो बन जाएगा d/2, विच इज डायमीटर को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो डायमीटर था 14, हमने 2 से डिवाइड किया, तो आंसर इज 7. तो 7 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 12.6. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग डायमीटर. सो यहाँ पे रेडियस को फाइंड आउट करना है, डायमीटर दिया हुआ है. सो हमें 22 को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, एंड द आंसर इज 11. सो रेडियस है 11 सेंटीमीटर. सिमिलरली अब इस 70 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस. सिमिलरली अगर हम इस 36 को 2 से डिवाइड करते तो आंसर आएगा 13 मीटर. सॉरी, दिस इज ऑल्सो मीटर, ये भी मीटर है. सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द गिवन diameters. Now the question number 2 is you have to find the diameter of the circle with the following radius. So हमें क्या करना है, डायमीटर को फाइंड करना है, रेडियस दिया गया है. तो डायमीटर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता था, डायमीटर इज इक्वल टू 2r मींस रेडियस. सो हमें क्या करना है, ए क्वेश्चन में 9 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी 18 सेंटीमीटर. दिस इज द डायमीटर. सिमिलरली 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 200 सेंटीमीटर इज द डायमीटर. सिमिलरली अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा 30 मीटर विच इज द डायमीटर. So like this children, you have to complete the rest of the questions, and with this we have completed the chapter. I hope children you have understood it, and you have to complete the exercises that is given to you as homework. I hope that you have enjoyed this class, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.